Dhanagaji, Saying say with love. Dhanagaji. In the world, there's often talk of ignorance, that ignorance is ailing the mankind. Man is not aware, is ignorant about so many things. When we talk about the political space, it is often said that man is ignorant of the power that he holds as a citizen. Man is ignorant of his or her own rights as a citizen. Or when it is a talk of science or something, man is ignorant about so many things. Often someone who is very well educated, knows a lot of things about this world, would say that there's a high percentage of humankind which is ignorant of the knowledge that is available, ignorant of so much that can be learned. But the biggest ignorance that is there is the ignorance, the unawareness of my own true self. Man is ignorant about the question, who am I? I often take the example of a branch of a tree asking another branch that, have you heard of something called a tree? There's been a lot of talk of something called a tree. And do you know what a tree is? Have you heard of a tree? And this is a branch asking another branch of the same tree. And the ignorance there is that they are not different from the tree. They are themselves who they are looking for. And this realization, this awareness, this awareness is what has been called as mukti, what has been called as gyan, what has been called as salvation, what has been called as nirvana. The knowledge, the answer to the question of who am I? And this is what man has been searching for, asking around. Do you know of something called as God? Do you know what God is, where God is, who God is? Is it possible to see? Does He even exist? Is it just a myth? But the ignorance has reached to a point where even this question is not asked enough. Only a handful are left with the desire or the quest to find answer to this. Because the darkness, the ignorance has reigned for so long that this state of ignorance feels like the new normal, feels like that this is how life is. There's nothing beyond what can be seen right now. There's nothing beyond what is visible to me. There's nothing beyond this manifestation that I see around myself. We often forget that if there is this manifestation, there's a creator in which this is all manifesting.
who's the one behind all of this creation. And I am no different than this creator. This creator has created me, exists in me, and I exist within this creator itself. And knowing the answer to who this creator is, where this creator is attaining the highest knowledge possible. The knowledge that has been talked of in all of the holy books, by all of the saints and sages, whether we talk about Gautam Buddha, whether we talk about Guru Nanak Dev Ji, whether we talk about any prophet from any time, everyone has preached and taught and given this message to humankind that this creator is one and we are all the manifestation, the extension of this creator. It's like that the branch finally found that answer, that I am the tree myself. And this realization leads to a state where I become one with this existence. I become one with this creator. And that state, in Hindi we often call it samarpan. जहाँ समर्पण हो जाता है, जहाँ लड़ाई खत्म हो जाती है, संघर्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे ये बात का बोध हो जाता है कि इस एक में ही सब कुछ है, इस एक के हुक्म से ही सब कुछ है, इस एक की रजा में ही सब कुछ है, और मैं भी इस एक का ही एक अंश हूं। तो वो अंश फिर अपने विराट रूप से संघर्ष करना बंद कर देता है, और इस अवस्था को भक्ति की अवस्था, इस अवस्था को जीवंत मुक्ति की अवस्था, इस अवस्था को निर्वाण की अवस्था कहा गया है। A state where myself ceases to exist and I realize that I'm just a drop of the ocean. I'm just a part of this whole, and I'm here because of this whole. This entire manifestation is because it is all part of this whole. And when this realization comes, all struggles end. Everything, life becomes effortless. We reach a state where we float rather than swim against the stream. It's a beautiful analogy that depicts what struggle is. There's a man trying to swim against the stream, and then when he's unable to do that, he comes out and he's all complaining that the entire world is against me. This river is against me. They don't want me to swim. They're not letting me swim. And then again goes on trying, again swimming against the stream. And when he's unable to, again coming out, complaining, crying foul, that this game is rigged, the world is against me. They don't want me to swim. They don't want me to learn how to swim. They don't want me to reach my destination. And this is how humans are living their lives. We all are living our lives. When something is not happening according to me, I'll keep on struggling, keep on fighting, keep on crying, keep on complaining that the world is against me, that everyone's against me. But I'm not realizing that like the man who is trying to swim against the stream,
rather than floating with the flow. I'm also struggling against this whole, this existence. पंक्तियां हैं कि हुक्म अंदर नानका, हुक्म अंदर चलना नानक लिखिया नाल, रजा में रहना गुरसिकदा वड्डा जेवर, भाणे अंदर रहना है। तो ये भाणा, ये हुक्म, ये रजा, ये वो अवस्था है जो इस ब्रह्म ज्ञान के बाद, इस एक को, इस मालिक खालिक को जानने के बाद मिलती है कि मैं भी इस एक का ही अंश हूं। जब मैं अलग ही नहीं तो लड़ाई किस बात की, संघर्ष किस बात का। फिर ये जैसे ले जाए, जैसे चला ले, तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। When I start flowing with the stream rather than trying to swim against it, that is the state of nirvana that Buddha has talked of. That is the stage of salvation that Jesus has told us about. That is the state that every human has the potential to achieve. And that is the state that Her Holiness is gracing upon this humanity, knowing that we are all part of this one, and we then cease to exist and we become one with this one. समर्पण ही आनंद का द्वार है। समर्पण जीवन में आता है तो जीवन में आनंद आ सकता है। फिर मेरा फोकस, फिर मेरा ध्यान परिणामों से दूर, सिर्फ जिस प्रकार ये चला रहा है उस पर चल रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं, आई एम गिविंग माई बेस्ट, बट द रिजल्ट्स दे डू मैटर, बट दे डोंट शेक मी अप। मेरी अवस्था परिणामों की मोहताज नहीं रहती, परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती। ये बात समझ आ जाती है कि इसने जो करना है वो इतनी आसानी से कर देना है जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। बड़े बड़े काम पता ही नहीं चलते कैसे हो गए। ये समर्पण। और कोई काम जब गुरसिक की अवस्था देखते हैं, कोशिश कर रहा है, काम नहीं हुआ, तो कहता है ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए होगा नहीं, चल पड़ता है, आनंद में है। आनंद नहीं कहीं जाने देता, क्योंकि गुरसिक कहता है कि इतनी मुश्किल से ये अवस्था मिली है। इस आनंद की बहुत कीमत है, गुरु ने बख्शा है। इस आनंद को बचा के रखना है और वो समर्पण से बचा रहता है। गुरु के चरणों में जब समर्पण है, ये भाव पता है कि मैं इस एक का ही अंश हूं, तो इस एक ने जैसे चलाना है मैं वैसे चल रहा हूं। ये भक्ति है। एक कहानी याद आ रही है कि एक बादशाह हुआ करता था। उस समय की बात है जब, एज वी ऑल नो, दैट स्लेवरी एग्जिस्टेड, तो गुलाम खरीदे जाते थे, ह्यूमंस वर सोल्ड। तो एक बादशाह हुआ करता था जो बाद में बहुत बड़ा फकीर बन गया। तो उससे लोगों ने पूछा कि आपको किस चीज ने खुदा से मिलाया, क्या ऐसा घटा, ऐसा क्या हुआ कि जीवन में ये समर्पण आ गया, जीवन में ये भक्ति आ गई, जीवन में इस प्रकार खुदा के लिए प्रेम आ गया, ये आनंद आपके जीवन में आ गया। बादशाह आप हुआ करते थे। तो वो बताता है कि मेरे गुरु की कृपा हुई। कहते कौन है आपके गुरु? तो वो कहता कि एक बार मैं बाजार से एक गुलाम खरीद के लाया। अब वो जब आ गया तो एक दिन मैं उसके पास गया पूछने कि क्या नाम है तेरा? तो उसने आगे से कहा कि गुलाम का क्या नाम, जो मालिक बुला ले वही मेरा नाम है। सुनी बात, थोड़ा सा हिला, फिर पूछता है अच्छा चलिए बता कैसे कपड़े पहनेगा? कहता है गुलाम का
क्या शौक, क्या चाहत, जो पहना दोगे, जो मालिक पहना देगा पहन लेंगे। फिर उसके लिए कपड़े भी बनवाए। फिर कहता क्या खाना क्या पसंद है तुझे, भोजन क्या पसंद है। क्योंकि उसके वो जवाब उससे बार बार ऐसे मिलना, तो बादशाह को उससे मोह सा होने लगा, प्रेम सा होने लगा कि कुछ बात है इस बंदे में। एक दिन पूछता है क्या खाएगा, जो मालिक खिला दे वो खा लेंगे। अच्छा, तेरा रहने का इंतजाम जैसे रख लोगे रह लेंगे। कहते बस उस दिन मैं उसके चरणों में लेट गया। बादशाह कहता है कि उस गुलाम के चरणों में लेट गया कि तूने मुझे जीवन का राज समझा दिया है। मैंने बहुत सजदे किए, बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत मस्जिद गया, पर ये जो नुक्ता तुझसे मुझे मिला है कि जो मालिक दे दे, तू मेरा गुरु, तू आज से मेरा गुरु है। तो वो फकीर बताता है कि ऐसे उस एक नुक्ते से सारी बात मेरी बनी कि जो मालिक दे दे। आज इसने बादशाह बनाया है तो ये सब इसका राजमहल सेवा है, चलाएंगे, इसका समझ के चलाएंगे, जैसे ये चलवा दे वैसे चलेंगे। कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई शिकवा नहीं। तो ये अवस्था समर्पण वाली, ये अवस्था आनंद के द्वार खोलती है। और वो आनंद जिसको मिल जाता है उसे फिर ये बात पता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस आनंद की कीमत लगा सके, जिसके बदले मैं उस आनंद का सौदा कर लूं कि ये आनंद मुझसे ले लो और मुझे ये चीज दे दो। जिसने सही मायनों में आनंद, ये भक्ति, प्रेमा भक्ति, इससे आया हुआ जो आनंद जीवन में आता है, जरा भी अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसे पता है कि इससे बड़ा, इससे बड़ी कोई दात नहीं, इससे अमूलक कोई अवस्था नहीं। फिर दुनिया की सारी संघर्ष, सारी रंजिशें सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये बात समझ आ जाती है कि इस अवस्था जो मुझे मेरे गुरु ने दी है, इस अवस्था से ऊंची कोई अवस्था नहीं। दुनिया की सारी दौलत भी एक तराजू में साथ रख दी जाए, वो भी मुझे ये अवस्था महसूस नहीं करा सकती जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ समर्पित होकर सदगुरु के चरणों में। लेकिन ये बात समझ तभी आती है जब ये अवस्था का अनुभव हुआ हो। कहने सुनने की बात सुनेंगे तो लोग तो पागल ही कहते हैं, पागल है, अकल नहीं है। क्योंकि जिसने उस चीज को देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, उसका गणित बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसका तर्क बिल्कुल ठीक कह रहा है, पागल है। क्योंकि दुनिया की नजरों से, दुनिया के गणित से चलेंगे तो ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है। बह रहा है, बहना चाहता है, कह रहा है जो मालिक दे देगा खा लेंगे। पर वो आनंद जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सारी दुनिया पागल ही समझती है। आज तक समझती आई है, संतों को पागल ही कहा गया है, समर्पित जीवन जीते हुए को पागल ही कहा गया है। लेकिन वो आनंद जब तक खुद ना मिल जाए तब तक ये बात नहीं समझ आती कि इस आनंद के आगे किसी और चीज का मूल नहीं है। बाकी सारी चीजें, दुनिया की सारी दातें सस्ती हैं। किसी और चीज को ले लिया और ये आनंद दे दिया तो इससे बड़ा घाटे का सौदा नहीं हो सकता। पर ये बात तभी समझ आती है जब इस आनंद की झलक मिली हो, इस आनंद का अनुभव हुआ हो। और ये आनंद सिर्फ और सिर्फ समर्पण से आता है। और समर्पण तभी मुमकिन है जब ये बात पता चले कि मैं दो नहीं, मैं कोई अलग हस्ती नहीं हूं, कोई द्वैत नहीं है, ये एक में ही सब है, ये मुझ में भी एक है, और इस एक के अंदर ही सब हो रहा है, इस एक की कृपा से, इस एक की रजा से ही सब हो रहा है। तो ना मुझ में कोई फर्क, ना तुझ में कोई फर्क, ना मैं कोई अलग हस्ती, सब कुछ है तो ये एक। जब ये एक के बारे में पता चलता है तभी समर्पण मुमकिन है। क्योंकि ये बात समझ आ जाती है कि जब मैं हूं ही नहीं तो संघर्ष कैसे, रंजिश कैसी, लड़ाई कैसी। फिर वो बहता है। तो ये बहने का नाम ही भक्ति है।
समर्पण से ही आनंद है। और ये जो अवस्था है ये हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है। दिस स्टेट ऑफ ब्लिस कैन बी अचीव्ड and attained by every living human, because we have been blessed with that potential. As it is often said that every being is potentially divine, every human is potentially divine. So here this human life is an opportunity to attain this bliss, to realize the divinity that exists within, to realize that I'm not a human having spiritual experiences. I'm a spiritual being having human experiences. तो साध संगत जी, अंत में यही भाव कि अगर ये आनंद की झलक आई है जीवन में, तो ये बात जान के रखें कि इस आनंद के आगे दुनिया की किसी चीज की, किसी दौलत की, किसी उपलब्धि की कोई कीमत नहीं है। अनमोल है ये दात। अगर मिल गई है तो दातार से यही अरदास कि संभाले रखें, अवस्था बनी रहे। और अगर इससे वंचित हैं तो ये मानव जन्म मिला ही इसलिए है कि इस आनंदमयी अवस्था को प्राप्त कर सके। तो ये अवसर है, इसे हाथ से ना जाने दिया जाए, जीवन का मूल डाल लिया जाए। प्रेम से कहना